Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System, and today is our sixth lecture for the course of Prestressed Concrete. This course is generally for MSc Civil Engineering, and I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 6 and week number 6. So in our today's lecture we will continue our discussion on prestressing losses. जो remaining prestressing losses के types जो रह गए हैं उनको आज हम डिस्कस करते हैं. उसके बाद हम डिज़ाइन एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे. These are your reference text books. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और बुक prestressing concrete के हवाले से अवेलेबल है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. This is a summary of the previous lectures. We already have a broad discussion on the prestressing methods and prestressing concepts and principles. Then we discussed about the tendon profiles and different components, जो components, anchorage systems and जो jacking stresses हम किस तरह से provide करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम already discuss कर रहे हैं. Then we discussed about the materials basically used for the prestressing concrete and prestressing steel के different types, codes, standards भी हमने discuss किए. And in our last class we discussed about the prestressing losses. So in our today's lecture we will continue discussion on the prestressing losses, and then we will go for the design examples for pre-tension and post-tension members, how we calculate the losses of prestressing in pre-tension and in post-tension members. And regarding prestressing losses हमने पिछली क्लास में इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस को डिस्कस किया और इलास्टिक शॉर्टनिंग किस तरह से अपीयर होता है प्री टेंशन एलिमेंट्स के अंदर, उसको हमने कैलकुलेट भी किया इटसेल्फ एज अ सेपरेट एज अ इंडिपेंडेंट लॉस. And then we discussed about the creep of the concrete losses, how creep of the concrete generated into the structure, और independently किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया. And then we discussed about the steel relaxation losses. So now in our today's lecture we will continue our discussion on the prestressing losses. जो remaining types बच गए उनको आज हम डिस्कस करते हैं. So our remaining type, major important type here is the shrinkage loss also. So shrinkage basically is appear into the concrete कि with the time dependent property of the concrete ये consider होती है, और with respect to the time concrete के अंदर एक reduction into the volume और contraction develop होती है. So therefore the magnitude of the shrinkage in concrete basically is affected by the several factors. Actually जो आपकी श्रिंकेज है वो नॉर्मली अपीयर होती है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट. मॉइस्चर मूवमेंट होती है मटेरियल के अंदर से, जो आपका पानी है इंटरनल वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है और कंक्रीट जो है वो सुकड़ना स्टार्ट करता है. तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ द श्रिंकेज को? दीज फैक्टर्स बेसिकली इन्वॉल्व द मिक्स प्रोपोर्शनिंग ऑफ द मिक्सचर. जो आपने कंक्रीट बनाई उसके अंदर जो बेसिक कंपोजिशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं, उनसे ये श्रिंकेज जो है वो स्टार्ट होती है. वो एक पॉजिटिव और मेजर रोल प्ले कर रहे होता है. इवन आपका टाइप ऑफ एग्रीगेट, इवन ऑफ द टाइप ऑफ द सीमेंट, इवन द कोर्स एग्रीगेट का टोटल रेशो विद रिस्पेक्ट टू द फाइन एग्रीगेट एंड टोटल एग्रीगेट का रेशो किस तरह से अफेक्ट करता है. Even the type of the cement in terms of rapid hardening Portland cement, normal ordinary Portland cement, अगर आप कोई additional admixtures के तौर पे mineral admixture as a cementing agent use कर रहे हो तो वो भी shrinkage को affect करता है. Then we have a curing time, और curing time starting time है, उसके बाद जो है वो ending time है, कितनी duration के लिए आपने curing apply की. Then we have application of prestressing, कि prestressing member के अंदर जब हम apply की तो वो किस तरह से जो है वो shrinkage को affect करवाता है. Then we have a size of the member, overall geometry of the element and the environmental conditions. तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि आपके श्रिंकेज की जो वैल्यू है, श्रिंकेज की जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, और श्रिंकेज की वैल्यू इन तमाम फैक्टर्स से कनेक्टेड है. Then we have a size and shape of the member also affects the shrinkage magnitude. Size and the shape, approximately 80% of the shrinkage normally appears into the final year of the structure. जो डिज़ाइन लाइफ है आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर की, लेट्स सपोज हमने एक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया जिसकी डिज़ाइन लाइफ 40 years है, तो जो श्रिंकेज आपकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटीज डेवलप होती हैं वो लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर होती है.
वो इसलिए कि आपके वहाँ पे मटेरियल्स जो हैं वो वीकर हो जाते हैं, उसकी डिज़ाइन लाइफ जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की रिड्यूस होती जाती है। सो देयरफॉर फॉर दैट पर्पस ACI ने हमारे पास जो है एक रिकमेंडेशन प्रोवाइड की कि यू हैव टू कंसीडर एन एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेंथ इन बोथ कंडीशंस, इन मॉइस्ट क्यूरिंग एंड इन स्टीम क्यूरिंग कंडीशंस। आपके पास 780 माइक्रोस्ट्रैंड की जो एक श्रिंकेज की वैल्यू अल्टीमेट या मैक्सिमम वैल्यू आपको सजेस्टेड है। However, this average value is affected by the length of initial moist curing, ambient relative humidity, volume to surface area ratio, temperature and the concrete composition. क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास एक अल्टीमेट वैल्यू तो 780 माइक्रोस्ट्रेन आ गई, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास वेरियस अदर फैक्टर्स आ गए, वेरियस अदर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आ गए, जिनके अंदर आपकी इनिशियल मॉइस्ट क्यूरिंग आ गया, इनिशियल जो है वो आपकी कंडीशंस आ गई, कंक्रीट की कंपोजिशंस आ गई, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल आ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई, टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया, टोटल फाइन एग्रीगेट टू टोटल एग्रीगेट का रेशो आ गया, इवन द साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट आ गई। तो ये तमाम जो फैक्टर्स थे, इन फैक्टर्स की वजह से सर्टेन एक श्रिंकेज की वैल्यू जो है वो अफेक्ट होना स्टार्ट हुई। सो देयरफॉर टू टेक इनटू दैट कंसीडरेशन कि जो डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनके लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया, करेक्शन फैक्टर, जिसको हम रो एस एच से रिप्रेजेंट कराते हैं। रो एस एच बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 वेरियस फैक्टर्स। 7 वेरियस फैक्टर्स किस किस टाइप के? टाइप ऑफ द सीमेंट का फैक्टर, कोर्स एग्रीगेट का फैक्टर, उसके बाद क्यूरिंग का फैक्टर, देन वी हैव वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशो फैक्टर, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक और फैक्टर आ जाता है इसके अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल वी हैव फाइन एग्रीगेट टू टोटल एग्रीगेट कंटेंट का फैक्टर। तो इस तरह से हमारे पास टोटल वेरियस 7 फैक्टर्स हैं, जो कि एक करेक्शन फैक्टर डेवलप हुआ, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारी टोटल इंटेंसिटी के साथ और अल्टीमेट श्रिंकेज की एक वैल्यू आ जाती है। सो द प्रीस्ट्रेस कंक्रीट इंस्टीट्यूट, ये हमारे था नॉर्मल कंडीशंस के लिए। उसके बाद प्रीस्ट्रेस कंक्रीट के लिए मजीद एक मार्जिन प्रोवाइड किया गया कि एवरेज वैल्यू फॉर द नॉमिनल अल्टीमेट श्रिंकेज मस्ट बी सिलेक्टेड एज 820 माइक्रोस्ट्रैंड, because if ultimate shrinkage basically strain for adjusting for the relative humidity at volume to surface area ratio, the loss in pre-stressing in pre-tension member becomes the pre-stressing के अंदर जो लॉसेस जनरेट हुए ड्यू टू श्रिंकेज बेसिकली इज इक्वल्स टू श्रिंकेज स्ट्रेन इनटू द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील, जो आपका प्री स्ट्रेसिंग स्टील है। तो प्री टेंशनिंग या प्री स्ट्रेसिंग बेसिकली वाज एक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था, एक सेंसिटिव मैकेनिज्म था। उसके लिए हमने जो श्रिंकेज की वैल्यू नॉर्मल कंक्रीट की थी, उसको प्री स्ट्रेस कंक्रीट वाले इंस्टीट्यूट्स ने इग्नोर कर दिया और हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई 820 माइक्रोस्ट्रैंड की, और उसको हमने कंसीडर किया। Then we have for post-tension member, the loss in pre-stressing due to shrinkage is somewhat less since some shrinkage has already been taken place. A pre-stressing loss in post-tension members, post-tension member जिसके अंदर टेंशनिंग हम बाद में प्रोवाइड करते हैं, कंक्रीट हमारा पहले बन चुका होता है, उस केस के अंदर भी एक सर्टेन वेरिएशंस आ गई थ्योरीज के अंदर कि कंक्रीट जैसे ही आपने बनाया, इवन आफ्टर फ्यू आवर्स श्रिंकेज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, in terms of plastic shrinkage, in terms of carbonation shrinkage, in terms of drying shrinkage। तो इस वजह से पोस्ट टेंशन मेंबर के अंदर हम स्ट्रेसिंग तो बाद में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारा जो मेंबर है वो जैसे ही कंक्रीट आपने बनाई वहीं से जो श्रिंकेज है बेसिकली वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। उस केस के अंदर प्री स्ट्रेस कंक्रीट इंस्टीट्यूट जनरली प्रोवाइड एन एक्सप्रेशन फॉर द प्री स्ट्रेसिंग ड्यू टू श्रिंकेज लॉसेस। That expression is equals to जो 820 माइक्रोस्ट्रैंड थी उसको हमने कंसीडर किया 8.2 माइक्रोस्ट्रैंड into the coefficient of the shrinkage, and then we have a modulus of elasticity of the pre-stressing steel, and then we introduce 2 other factors here, volume to surface area ratio and the relative humidity। volume to surface area ratio आप एलिमेंट का रेशो कंसीडर करते हैं और relative humidity बेसिकली आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एनवायरनमेंट। वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो बेसिकली हम इस तरह से लेट सपोज वी हैव अ बीम, तो जो बीम की ओपन एक्सपोज्ड जो सरफेस है टू द एनवायरनमेंट, उसका हम एक टोटल वॉल्यूम लेते हैं ओवरऑल स्पेसिमेन का, और सरफेस जो एक्सपोज्ड एयर की तरफ है, एनवायरनमेंट की तरफ है, उसका हम आपस में एक रेशियो लेते हैं। एंड in table we can see here we have various types of shrinkage coefficients for the post tension members, shrinkage coefficient depending on the time of curing,
1 days, 3 days, 5 days and up to 60 days curing, and shrinkage coefficient is value is varying from 0.9 to 0.45. तो इन तमाम वैल्यूज में से हम जो सजेस्टेड एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं हमारे स्ट्रक्चर एलिमेंट के लिए. सो नाउ श्रिंकेज बेसिकली इज अ मैकेनिज्म जो कि एवापोरेशन हो जाती है, जो पानी मौजूद होता है कंक्रीट के अंदर वो एवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से मेंबर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. अब ये प्रोसेस जो डेवलप हुआ बेसिकली ये लाइक इलास्टिक शॉर्टनिंग जो हम ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कि इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से जो एलिमेंट आपका शॉर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. एग्जैक्टली इसी तरह से जब आप श्रिंकेज अपीयर होती है मेंबर के अंदर तो मेंबर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका जो एलिमेंट होता है या प्रीस्ट्रेसिंग जो बार है वो इटसेल्फ भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जिसको हम लॉस कंसीडर करते हैं. तो बेस्ड ऑन डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर प्री-टेंशन मेंबर्स, transfer of pre-stressing force commonly takes place after 24 hours after casting, and nearly all shrinkage takes place after that. क्योंकि प्री टेंशन के अंदर आप प्री टेंशनिंग आप पहले प्रोवाइड कर चुके हो, उसके बाद आप कंक्रीट बनाते हो, कंक्रीट आपका उसके बाद जाहिर है कंक्रीट बना उसके बाद वो सुकड़ना स्टार्ट करता है. सो देयरफॉर एन एवरेज श्रिंकेज वैल्यू इन कंक्रीट इज इक्वल टू 0.0003 माइक्रोस्ट्रैंड. However, for the post-tensioning member, stressing may take place after 1 day or much later. Thus, the large percentage of shrinkage may taken place by that. So, therefore, average shrinkage value of concrete जो है वो 0.0002 microstrand consider होती है in the case of post-tension members, and in the case of pre-tension we have 0.0003 microstrand value consider होती है. तो ये हमारे पास वेरियस रेंजेस थी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस जो कोर्ट्स ने सजेस्ट की. इन वैल्यूज को हमने यूटिलाइज करना है फॉर द लॉसेस कैलकुलेशंस. हम किस तरह से इनको यूज करते हैं आगे हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं.